हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। Graveyard School of Poetry is basically a late 18th century group of poets. It's come basically after Augustan era. ये Augustan era के बाद आने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, ये ऑगस्टन इरा के बाद आने वाला एक ग्रुप है जिसको कि हम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री कहते हैं। एंड साथ में दिस इज ऑल्सो नोन एज चर्चयार्ड पोइट्स। ऑल्सो नोन एज churchyard poets. Now these are the poets who have a very good number of poets in this group. There is a very vast number of poets and इनको graveyard school of poets क्यों बोलते हैं, या why these writers have chosen this name graveyard school of poetry. Basically these writers are identified as these writers are identified as pre-romantic writers with sadness. So they have seen the society with a sadness. They have seen the society with a kind of phase which is lamenting, which are sad, they are in a dismay, they all are being seen as the living dead. So these writers were meditating over the mortality. Their main subject meditating over morbidity और mortality. ठीक है, ये लोग mortality, death वगैरह के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं and finding the society as a living dead. कि they are living but they are dead because these people doesn't know how to fight for their right. These people are unaware about their rights. They are just talking about the coffins and skulls and worms and death and graveyard. These are the common themes of their writing. And there also the experimentation is basically they are not disillusioned but they are away from the society. They are disheartened by the political corruption, disheartened by political and religious corruption, ignorance of government and heartless industrialist. इन पे जो मेन फर्क पड़ा था वो था माइग्रेशन का। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड को छोड़ रहे थे। So they were also like deprived. They were not liking the idea of being into the society or interactive or enthusiasm. There was no enthusiasm. So यहाँ पे जो इनकी central theme रहेगी
सेंट्रल थीम या सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग्स क्या रहेंगे इनके? फर्स्ट, skulls and coffins, worms and beetles, graveyard or churchyards, mortality, morbidity and death as a reality of the life. Elegy and lamenting on elegy, lamenting and sadness. They are writing about the darker side of the life. And migration, industry, industrialization and migration and urbanization. Gothicism, ये इसकी मेन थीम्स हैं जिसके बारे में इन्होंने बात की. दिस इज़ द मेन कंटेंट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. इसमें जो मेन फीचर्स है पार्शियली अगर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन राइटर्स हैं, सो दे आर अ लॉन्ग लिस्ट. थॉमस पार्नेल एंड थॉमस ग्रे, चैटरटन. There are many writers who were talking about this particular side of the life. Their inspiration was mainly Milton and Puritan writers and you can say metaphysical. तो हम इसमें इनके जो inspirations and influences में देखेंगे. इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंसेस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मिल्टन एंड मेटाफिजिकल पोएट, मिल्टन एंड मेटाफिजिकल पोएट्स, ये मेन इनके इन्फ्लुएंसेस में आते हैं. देन इसके अलावा समवेयर स्पेंसर, ये इनके मेन इंस्पिरेशन में है बिकॉज इनकी जो इमेजेस है ये किस वजह से यहाँ पर आएंगे. पेस्टोरल थीम्स, एलिजीज, ठीक है. pastoral theme, elegies and religious subjects. ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात थी, रिलीजियस सब्जेक्ट्स की बात थी एंड एलिजीज इन्होंने लिखी थी पेस्टोरल थीम्स के ऊपर. पेस्टोरल एलिजी इन तीनों की है. सो इसी वजह से ये इनके
मेन जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो यहाँ पर आते हैं. देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द ग्रेवयार्ड राइटर्स. List of the most important graveyard poets. ये इस तरीके की थीम पे काम क्यों कर रहे थे, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं. नाउ मेनली व्हाट हैपेंस कि जब हम एक जर्नी देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देयर इन्फ्लुएंसेस आर अबाउट फ्रॉम द एलिजाबेथन पोएट्स ऑल्सो एंड मिल्टॉनिक प्यूरिटन पोइट, और इन दोनों के बीच में मेटाफिजिकल है. जब ये उन सबसे इंस्पायर थे तो वाई दे वर राइटिंग अबाउट सो मच ऑफ द डलनेस एंड डिसमे, वो ये सैडनेस की बातें क्यों कर रहे थे. वो सैडनेस की बातें इसलिए कर रहे थे ये राइटर्स क्योंकि अगर हम जनरली इन पोएट्स के बारे में देखते हैं, सो दे बिलोंग टू द लेट 18th सेंचुरी एंड रेस्टोरेशन पीरियड के बाद जब स्टुअर्ट डायनेस्टी का एंड हुआ एंड हैनोवेरियंस आ जाते हैं, तो हैनोवेरियंस वर द जर्मन रूलर्स हु स्टार्टेड रूलिंग द इंग्लैंड, बट दे वर मोर they were like Protestants. They were not ruling as a Catholics and religious. जो प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व हो गई थी, यहाँ पे रिलीजियस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बट द पोप्स वर डूइंग ऑन वर्किंग ऑन देयर ओन वे. दे वर नॉट फोकसिंग मच ऑन द सोसाइटी, दे वर नॉट फोकसिंग मच ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. They were the money makers, and ministers were taking bribes and money, and justices were also partial about their judgments. They were not taking the councils on their time. The dates are being given, and if we talk about the Augustan age, then Augustan age of literature was a flourished one, but what those writers were doing, what those writers were writing, those writers were actually focusing on the frailties and all the darker side of the society. They wanted to update the society with the culture and especially the scandal mongerings. तो अगर हम बात करते हैं इसकी पोप की, स्विफ्ट की, एडिसन, स्टील, they were all focusing about the different traits of the society and were writing it in their prose writings. So पोएट्री तो थी, लेकिन ड्रामा का डिक्लाइन हो चुका था. नो पीपल वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द थिएटर्स एंड वॉचिंग ड्रामा until and unless it was a experimental one, a good one, or something which actually gives the excitement to the people. तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा था. जब ड्रामास के अंदर कोई नया क्वालिटी नहीं आ रहा था, दे वर ऑल लाइक फैच्ड फ्रॉम द ओल्डर वन, क्योंकि रेस्टोरेशन में ही इनका बहुत डिक्लिनेशन हो गया था. दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल थीम्स एंड नो वन वांट्स टू रीड अबाउट इट. कोई उनके बारे में पढ़ना नहीं चाह रहा था, सुनना नहीं चाह रहा था, जानना नहीं चाह रहा था. तब भी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखे जा रहे थे. तो दीज पीपल वर just give up writing dramas and they started, now the writers started producing proses, novels, romances. They were writing about experimentation, expeditions, explorations and traveling journeys. They were writing about the life experiences. They were writing about the English society. तो वो character building की बात यहाँ पर आ जाती है. But in poetries if we see, तो the common subject and in the essays, the satires, अगर उनमें हम देखते हैं, जो स्विफ्ट का देखते हैं, तो he was pointing out on everything. He was pointing out on education, he was pointing out on sciences and technology, religion and the politics. इन सभी के ऊपर उसने comments करे हैं और उसने साफ साफ कहा है कि the politicians are basically ruining the society. They are just declining the idea of human society का जो एक idea होता है कि yes human society है, मिल के चलना है, उन सबको पॉलिटिशियंस ने ख़त्म कर दिया. कॉलोनाइजेशन की बात यहाँ पर आ गई थी. तो ये इसके बाद का जो एक फेज़ आ रहा था, यहाँ पे इन्हीं ऑगस्टन ईरा के जो राइटर्स हैं हु आर राइटिंग अबाउट द
corruptions and the bad status of the minister and judges judgments, इनके साथ साथ के राइटर्स ने ही ये सोचा कि इट इज़ वेग, इट इज़ यूजलेस टू राइट अबाउट द सोसाइटी एंड द कल्चर एंड देयर पॉप कल्चर, देयर डिक्लाइनेशन, कि ये जो नीचे गिरते चले जा रहे हैं, चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं, इनका डी कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम लिखना बंद कर दें तो कैसा रहेगा. So they started finding out the way कि what exactly they can write which can give them a boost. ठीक है, वो ऐसी कौन सी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं जो कि उनको एक बूस्ट देगा, जो कि उनको एक अच्छी जगह पे ले जाके फेम एंड नेम दे सकता है. एंड दे ट्राई टू शिफ्ट इट टूवर्ड द नेचर. और वो नेचर की तरफ शिफ्ट करने का उनके पीछे रीज़न क्या था? नेचर के पीछे शिफ्ट करने का एक लौता रीज़न था, they find it easier because already French romanticism start हो गया था, and they saw that people are the writers of France and Germany was already writing about the nature. They are talking about the flower and birds, butterflies and the nature and enjoyment and experimentation with the nature, and they are not bound only and only with सोसाइटी. तो वो इस सोसाइटी के साथ केवल बाउंड है ही नहीं. अब यहाँ पे इन लोगों ने भी सेम टाइप का जब शिफ्ट करने का सोचा, इन्होंने भी जब सेम तरीके से चीजों को शिफ्ट करने का सोचा तो दे फाउंड इट मोर इंटरेस्टिंग. लेकिन एक जो सोसाइटी के अंदर ये हैं और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत डलनेस है, क्रूएलिटी है, पीपल आर नेगेटिव, दे डोंट वांट टू रेसिप्रोकेट, दे डोंट वांट टू फाइट. तो क्या हो रहा है? द आइडियाज आर देयर इन द माइंड, दे आर ट्राइंग टू टेक अ लिटिल शिफ्ट, लेकिन वो पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं. तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के जो राइटर्स हैं, दे फाइंड द डलनेस इन द लिविंग सोसाइटी एंड दैट इज वाई दे कॉल्ड इट अ लिविंग डेड. कि ये राइटर्स जो हैं, ये जो लोग हैं इस एज के, they don't want to fight, they are not capable of taking a fight because ये लोग लड़ ही नहीं पा रहे हैं, because ये लोग कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, इनको अपने राइट्स ही नहीं पता है. और इन्होंने इसीलिए ग्रेवयार्ड के अंदर, जैसे थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चा लिखी है, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो राइटर्स हैं वो जो पीपल हैं, they are even not thankful to their elders who have sacrificed their life for the nation building. कितने लोग यहाँ पे इस ग्रेवयार्ड में, इस चर्चयार्ड में हैं, कॉफिन्स के अंदर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी इस कंट्री को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, इस जगह तक पहुँचाने के लिए. एंड दीज थैंकलेस पीपल आर देयर. सो इट्स गुड दे आर डेड, इट्स गुड दे आर इन कॉफिन. अदरवाइज वो देखते कि कितने थैंकलेस लोग हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, और इवन अगर कुछ गलत भी है तो उसे सही करने के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं. बट दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर बिल्डिंग अ नेशन इन सच ग्रेट लाइक इंग्लैंड, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कॉलोनीज थी, इंग्लैंड का बहुत नाम था. लेकिन रियलिटी क्या थी कि यहाँ के खुद के लोग ही यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के मिनिस्टर एंड जजेस से खुश नहीं थे. They are opposing them, they were running from them, and similarly these writers were also running from the problems and were finding a escape in nature. तो इनकी जो थीम्स की बात है कि they were running and were finding the escape in the nature, वो escape पूरा नहीं हो पा रहा था, they were somewhere in between. ठीक है, तो ये गॉथिसिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये थीम्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल इनका जो ये नेचर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से पहले मैं आई वांट टू राइट दिस दैट these writers were running from the day to day issues and finding an escape in nature. But
were failed to shift completely. 100% शिफ्ट नहीं हो पाए थे. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर द लिस्ट. अब इन राइटर्स के नाम देखते हैं कौन कौन है. थॉमस पार्नेल, थॉमस ग्रे, Thomas Warton, Thomas Chatterton, Thomas Percy. Sixth, Christopher Smart, Edward Young, William Cooper, William Collins, William Mason. इनके आगे इनके ना वर्क्स भी फेमस लिख दूंगी मैं. Then James Thompson, ऑलिवर गोल्डस्मिथ. ठीक है, ये मेन वर्क्स हैं इनके. सॉरी, राइटर्स के नाम हैं. अब मैं आपको इनके जो मेन वर्क्स हैं वो बता देती हूँ. थॉमस पार्नेल का है नाइट प्लेस ऑन डेथ. Thomas Gray, Elegy Written on Country Churchyard, Thomas Warton. He was a poet laureate as well. ठीक है. थॉमस चर्टन, राउले पोएम्स, थॉमस पर्सी, रेलिक्सेस, क्रिस्टोफर स्मार्ट, रॉबर्ट ब्लेयर भी है. क्रिस्टोफर स्मार्ट्स के रिलीजियस पोएम्स हैं, हिम्स.
एडवर्ड यंग का है नाइट थॉट्स। विलियम कूपर, he was best known for many of the short poems basically, but इनकी जो main famous poem है Olney Hymes। विलियम कॉलिंस, इकोलॉग्स, सिमिलरली मैसन का हम लोग छोड़ देंगे, वार्टन एंड मैसन, जैसे ये दो पोएट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इनको छोड़ देंगे, बस नाम ध्यान रखना है। जेम्स थॉमसन, सीजन्स, this is in 1730 considered as the first poem which shown the graphics of moving toward the romanticism and changes from the Augustan poetries. Then Robert Blair, ग्रेव, यहाँ से इस पूरे ग्रुप का नाम निकला था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। रॉबर्ट बर्न्स को मेनली इसमें कंसिडर कई बार करते भी हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं, बिकॉज ही वॉज अ स्कॉटिश पोएट। ठीक है, ही वॉज मेनली स्कॉटिश पोएट, और इनका जो वर्क है रॉबर्ट बर्न्स का, दैट इज सुपरस्टिशंस of Scottish Highlands. So sometimes these are not considered as English poems, but basically he was writing and publishing it in England itself. Then James Macpherson, इनका ओशन पोएम्स के नाम से था। ओशन पोएम्स एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ, दैट इज द डिजर्टेड विलेज। ये हैं आपके कुछ पोएम सैम्पल्स जिसको कि हम इसमें लेंगे कि इन राइटर्स ने मेनली जो ये वर्क्स लिखे हैं, दीज आर द वन विच आर रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ दिस एज। सो जैसे कि फर्स्ट पार्नेल का जो वर्क था उसमें द किंग्स डेथ हिमसेल्फ इज एन एड्रेस टू हिज किंगडम। जब वो मरता है तो वो अपनी लोगों को एड्रेस कर रहा है। ही इज trying to make them cheerful and brave as he is going, and ग्रेव के अंदर भी इसी तरीके की चीज़ें दे रखी हैं। कंट्री चर्चयार्ड में भी सेम वो ही शोइंग दैट द कर्फ्यू टॉल्स आर नेलिंग ऑन द पार्टिंग डे। डे ख़त्म हो रहा है, शाम होने वाली है, चर्च बेल बज रही है, लोग आ रहे हैं झुंड में वापस अपने घर जाने के लिए। दे आर टायर्ड। So these are such samples of the poems which you should do. ये आपका मेनली ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है। इसी में इसी सेम एज में एक आप ग्रुप देखते हैं ट्रांजिशन पोइट्स, बट ट्रांजिशन पोइट्स सेम टाइम के ही हैं, बट
दे आर स्टिल राइटिंग ऑन डिफरेंट थीम्स. सेम इसके अंदर जैसे विलियम ब्लेक वगैरह आ जाएंगे, दे वर राइटिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड एंड माइथोलॉजी. तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया आपके पोएट्री राइटिंग का या सब्जेक्ट डीलिंग इन द 18th century. So there are much of the disturbances are there. That is why the people were writing about the Gothicism. Now, yes, there is a big Diwali dhamaka. The offer is starting on 24th of October to 3rd of November. 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक ये एक बिग दिवाली धमाका बाय उत्कर्ष फैमिली इज गिविंग टू यू. इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार. उत्कर्ष ऐप में यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 3 months प्लस पेपर 1 रिकॉर्डेड कोर्स फ्री इज अवेलेबल. यू कैन ऑप्ट फॉर इट, गो फॉर इट. तो 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 3 months की, एंड पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स आपको अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज योर दिवाली धमाका and stay tuned with the Utkarsh family and the channel to get more updates about your studies and upcoming examination and also for upcoming offers in the same field. So to prepare with us for December 2024, stay tuned, take care.